Good evening, everyone. Good evening, everyone on the panel. On behalf of this forum, it's a privilege for me to welcome Honorable Minister of Environment, Forests and Climate Change, Shri Bhupender Yadav ji. Sir, we are honored to have you. Thank you for sparing your time and gracing us with your presence. It's a very interesting topic because today businesses and environment, they go hand in hand. We have to, it's amazing how the world is growing rapidly, be it in terms of technology. We've seen countries fighting for rare minerals, but all this also affects the environment. And sir, we're so glad that under your leadership, you've shown that this balance is possible. With the policies that your ministry has made under your leadership, be it the Green Credit Program, environment audit rules, digital approvals through Parivesh portal, they're truly doing wonders for companies working, who directly or indirectly are linked to the environment. So today, like we mentioned, e-waste has become a big problem. Here in this room, everybody would have at least one mobile, if not two, and let's not count burners because it'll go off the roof. So how do we dispose them? Which is the most environmental friendly way to recycle them, to dispose them? And the government of India has worked extremely well on this by forming the e-waste management rules. Giving the responsibility and the responsibility of that framework on the producers to actually recycle a portion of the goods that they produce. So thank you very much, sir. Let's please have a interesting conversation. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you very much, Mr. Prakash, and thank you for introducing. Oh, we anchors normally believe that we don't need mics. Sorry, pardon me for that, but thank you very much. We have in our midst Union Minister for Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Mr. Bhupender Yadav, a man who's seen as a no-nonsense man, a man who's got his head and heart in the right place, and a man who is actually attending to the real challenges of environment. We're extremely happy to welcome you on the PAFI stage, Mr. Bhupender Yadav. Thank you very much for joining us. Also introducing Rishi Chawla, Vice President, Corporate Affairs of Carlsberg, India, Rajiv Batra, Past President and Founding Member of PAFI, joining us right here on the stage. But let me begin with my list of questions. Bhupender Yadav ji, before I get on to the very exalted questions of net zero, world stage, global negotiations, I want to begin with the basics. And I want to begin with the fact that this year, the monsoons have shown their fury. We've seen, especially in the hill states, a lot of damage, a lot of loss of life, landslides. आपदा बहुत देखी हमने इस साल, हर साल देखते हैं, इस साल कुछ ज़्यादा देखी. I want to begin with that challenge that we are currently facing, and I want to ask you, at a policy level, are we going to be silent spectators? Mistakes have been made in the past, but where do we go from here? नविका जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि नेट जीरो बहुत कोई कठिन विषय नहीं है. नेट जीरो का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर है तो नेचर है. नेचर में कुछ भी बनता है, मतलब जो ह्यूमन स्पीशीज है उनको लगता है कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन स्पीशीज प्रोडक्शन जो नेचर के हैं उसको केवल यूज कर रहे हैं. फूड नेचर से आता है, ऑयल
नेचर से आता है, लास्ट रिसोर्स ऑफ एनर्जी नेचर से आती है। इवन आप कोई भी एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कोई भी आप दवाई लोगे, उसका लास्ट रिसोर्स नेचर से आता है, वो इंसान नहीं बनाता। पर नेचर जो कुछ प्रोड्यूस करती है वो नेट जीरो होता है। नेचर की पत्ती, नेचर के पेड़, नेचर की सारी चीजें वापस से नेट जीरो बन जाती हैं। रिटर्न गिफ्ट में इंसान जो कुछ पैदा करता है वो गार्बेज होता है। बहुत सिंपल कहें, नेचर हवा देती है सबसे प्योर। धरती पे कोई और स्पीशीज हवा को खराब नहीं करती, केवल इंसान करता है। नेचर वाटर देती है सबसे प्योर। आपने देखा है कोई मछली वाटर को खराब करती है? वो तो वाटर में ही रहती है। कोई मगरमच्छ वाटर को खराब करता है? वो तो वाटर में ही रहता है। लेकिन एसटीपी जो है वो इंसान को लगाना पड़ता है, क्योंकि वाटर को खराब इंसान करता है। अब जो दूसरा आपका प्रश्न है, यहाँ हम जलवायु परिवर्तन के कारण डिजास्टर को देख रहे हैं। अभी हमने बाढ़ को देखा है, इससे पहले हमने भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर भयंकर तूफान भी देखे हैं। 2 साल में आपने अखबार में पढ़े होंगे, ताउत के तूफान आता है, आम्फान तूफान आता है। तो टेम्परेचर राइज होना, बायोडायवर्सिटी का लॉस होना और नेचर के साथ इम्बैलेंस होना, ये ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण हुआ है। अब प्रश्न उठता है, इसका पॉलिसी के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? तो पॉलिसी के लेवल पे हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं। पहला, जो भी डेवलपमेंट हो वो इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट को देख करके डेवलपमेंट हो, जिसकी हम लोग समीक्षा भी करते हैं। दूसरा, ये जो फ्यूचर में ना हो, इसके लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नए इन्वेंशंस को हम मौका दें। तीसरा, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, और हम तीनों ही विषयों पे काम कर रहे हैं। आज अच्छा होता अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी होते, क्योंकि ये जो नेचर और साइंस टेक्नोलॉजी के बीच की जो ये लड़ाई है, इसमें देखा ये जाता है कि नेचर कई बार पीछे रह जाता है। टेक्नोलॉजी, द डिज़ायर टू रेज जीडीपी ग्रोथ हैज़ एंड इट डज टेक इट्स टोल ऑन नेचर। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जीडीपी और ग्रोथ बुरा नहीं है, केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है पूरे पॉलिसी में, जिसको प्रधानमंत्री जी लाइफ के अंतर भी कहते हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होना चाहिए रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन। माइंडफुल कंजम्पशन इज द ओनली वे जिस पर हमको पॉलिसी इंटरवेंशन करके आगे बढ़ना होगा। So I want to ask you, how challenging is it to bring every sector of India under the ambit of a green economy and ensure long-term sustainability? इसकी ज़रूरत है, पर इसका रोड मैप क्या है? ये आपने बहुत सही बात कही है। और जो हमने नेट जीरो 2070 का प्लान दिया है, क्योंकि जितना भी अभी डेवलपमेंट हुआ है, इस सारे डेवलपमेंट में ये ध्यान में आता है कि अल्टीमेटली ये जो सिविलाइजेशन है ये एनर्जी कंजम्पशन बेस्ड है। हम चाहे इस हॉल में बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम गाड़ी से आ रहे हैं, चाहे अपने किचन के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब एनर्जी कंजम्पशन होगा ही होगा। जितना हम एक्सेस टू डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को देंगे, उतना ही एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो नेट जीरो पे जाने के लिए हमको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि एनर्जी रिसोर्सेस ऐसे हों जो रिन्यूएबल बेस्ड हो, जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो। और इसलिए दुनिया के सभी देशों ने अपने एनडीसीज दिए, भारत ने भी जो अपने एनडीसीज दिए, हमें अपने देश के नेतृत्व पे ये गर्व है कि हमने 2030 के लिए कहा था कि हम रिन्यूएबल की जो कैपेसिटी है उसको 40% अपनी कैपेसिटी को रिन्यूएबल पे बढ़ाएंगे। हमने समय से 9 साल पहले उसको पूरा किया। हमने जो टारगेट दिया था कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, उसको भी हमने समय से पूरा किया। पहला विषय।
दूसरा विषय, हम अनलिमिटेड नेचर के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते। वो जो पहले पॉलिसी होती थी टेक, मेक एंड वेस्ट, उसकी जगह रिसाइकल, रीयूज़ और रिप्रोड्यूस। और इसलिए देश में सबसे ज़्यादा हमने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पहल करी है। ईपीआर के रूल्स से लेकर के और जितने भी नए गाइडलाइंस हम ला रहे हैं, हमारा यही कहना है कि हमें वेस्ट टू वेल्थ की ओर जाना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी की ओर। तीसरा विषय, जितना हम टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमको बायोडायवर्सिटी के साथ भी बैलेंस करके रखना होगा। हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट में भी संशोधन किए हैं। उसके साथ ही साथ हमने इसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के प्रोग्राम भी चलाए हैं। अगर नॉर्मल पूछें तो हमने देश के फॉरेस्ट कवर की चिंता करने का काम किया है और ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जैसा एक जन भागीदारी का मिशन भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि धरती के जो डेजर्टिफिकेशन की चुनौती है, उसको लेकर भी हम चाहे नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ावा देते हों, चाहे हम नए कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करने की ओर बात करते हों, ये समग्र प्रयास है। और इसमें नेट जीरो के लिए हमारे फ्यूचर के सिटी, हमारा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल, हमारा एनर्जी कंजम्पशन का तरीका और हमारे नए रिन्यूएबल की ओर जाने की क्षमता, टेक्नोलॉजिकल विकास, और जो मिशन लाइफ में हम 7 आयाम करते हैं कि हम डेवलपमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हमें 7 मानकों में अभी हम यूथ के साथ बातचीत करते हैं। पहला, सेव एनर्जी, आप जो भी टेक्नोलॉजी अपनाएं सेव एनर्जी की ओर जाएं। दूसरा, सेव वाटर, क्योंकि धरती पे पीने के पानी की जो चुनौती है तो वाटर का सही इस्तेमाल हो। सेव फूड, फूड वेस्टेज सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा, बड़े शहरों में वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पांचवा, हमारे पर्सनल कंजम्पशन में इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है तो ई वेस्ट, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। छठा, बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और सातवां, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये मिशन लाइफ का जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम चाहते हैं नौजवान टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, और सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है कि पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से हम इसको जब मजबूत करेंगे तो नेट जीरो की ओर देश को लेके जा सकेंगे। भूपेंद्र यादव जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारा देश, भारत देश, एक बहुत बड़ा देश है, कई राज्य हैं, और कोई भी पॉलिसी चेंज जब तक राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, हमें वो उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। अब मैंने नेचुरल डिसास्टर्स इन द करंट मॉनसून की बात की। हिमाचल प्रदेश 300 लाइव्स वर लॉस्ट, उत्तराखंड 17 लाइव्स वर लॉस्ट। आई वांट टू आस्क यू कि क्या एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहां हम सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक नेशनल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव करें जहां पर हम एक वॉर फुटिंग पर इन चैलेंजेस का सामना कर सकें? ये बात ठीक है, और डिजास्टर के मामले में राज्य और देश नहीं, हम सब लोग मिलकर के साथ रहते हैं। ये जो क्लाउड बस्टिंग का जो विषय है और जो ग्लेशियर के पीछे खिसकने का विषय है और उसके साथ जो वाटर बॉडीज बनती है और उसका जो ब्लास्ट होने का विषय है, ये ऐसे विषय हैं जिसको समन्वित तरीके से सोचा जा सकता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जो प्राकृतिक कारण हैं वो कोई एक राज्य या एक देश को हम ब्लेम नहीं कर सकते, वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या। और इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग, फ्यूचरिस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग की क्षमता को बढ़ाना, ये सारे विषय हैं जिसमें हम लगातार राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे जो बॉडी है वो स्टेट कमिटीज के साथ मिलकर उन सब पॉलिसी इंटरवेंशन पे आगे काम कर रही है। Deforestation, that's another issue that is of great concern. In fact, हाल ही में ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि दिल्ली से देहरादून का प्रोजेक्ट है, हाईवेज हम बना रहे हैं। हाईवेज चाहिए, क्विक ट्रैवल चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या संतुलित तरीके से हम एनवायरनमेंट को भी साथ में देख रहे हैं? इस पर बहुत डिबेट है देश में। आप मानते हैं कि somewhere there has to be more of a balance between development and environmental concerns? इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ ही चलना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। सड़कें ना बनाई जाए ये कोई समाधान नहीं है। सड़कें बनाने के साथ उतना ही कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन हो।
और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की लगातार हर 2 साल में फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है। फॉरेस्ट का अर्थ केवल पेड़ बढ़ाना नहीं होता है, फॉरेस्ट का अर्थ है पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है। जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है, उसका हमारा उद्देश्य ये है कि बिग कैट्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं जहाँ पूरा इकोसिस्टम सर्वाइव करता है। और उसमें अगर कुछ सड़कें भी बनती हैं, बॉर्डर एरिया पे भी कुछ निर्माण कार्य होता है, तो केवल वो कारण, उसके कारण हम उसको स्टॉप कर दें, ये कोई समाधान नहीं है। हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सड़कें कोई एकमात्र कारण नहीं है, सड़कें बननी चाहिए नीचे तक। हर गांव के जो बेचारा गरीब ट्राइबल अपने गांव के अंदर बैठा हुआ है, उसकी गलती यही है कि वो अपने गांव के कोने में बैठा हुआ है, कि हमको इसका एक्सेस नहीं देना होगा। पर हाँ, अगर फॉरेस्ट की कमी होती है तो हमें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के द्वारा बढ़ाना होगा। डिग्रेडेड फॉरेस्ट में हमें लोगों की सहयोग लेकर के उसको आगे करना होगा। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी, और यहाँ भी बैठे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक ग्रीन क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी भी लेकर के आए हैं। पिछले 29 अगस्त को ही हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन के आधार पे उस पॉलिसी को भी इस तरीके से करा है कि जो भी कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो किसी भी फॉरेस्ट एरिया के ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहते हैं, वो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से वो अपना लाभ भी ले सकते हैं, अपनी कंपनीज के ESG को भी वो आगे बढ़ा सकते हैं। Let me also ask you, and before you jump to conclusions that I'm asking you a political question, I just want to say this, that this is a column that has been written by none other than very senior Congress leader Sonia Gandhi. She has said that the Great Nicobar project, 72,000 crore rupee Great Nicobar project, is a misplaced priority that poses existential threat to indigenous tribes, biodiversity and the region's ecology. मैं पूछना चाहती हूँ, वो कॉलम आपने जरूर पढ़ा होगा, मैं आपका पूछूं? क्या? उसी अखबार में दूसरे दिन मेरा कॉलम आया था, वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपका रिसर्च एक पार्टी तक सीमित क्यों है? नहीं, मैंने आपका भी कॉलम पढ़ा, पर आप आज अगर आपने मेरा कॉलम पढ़ा है तो आप मेरा भी सेंटेंस कोट कर दीजिए, सबको क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो मैं बिल्कुल कोट कर दूंगी, पर जब साक्षात आप हैं यहाँ पर तो मैं पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज योर इवैल्यूएशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड डू यू थिंक? मैं बहुत सिंपल भाषा में कह देता हूँ, टोटल निकोबार के फॉरेस्ट एरिया का 1.78% 1.78% ही इसके लिए यूज हो रहा है। तो क्या इस देश को इतना भी हक नहीं है, उन लोगों को इतना भी हक नहीं है कि देश की सुरक्षा क्षमता, परिवहन क्षमता और आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए हम 1.78% का यूज करें? अच्छा, उनके शासनकाल में, अब मेरे जवाब को आप पॉलिटिकल मत मानना, I'll try not to. उनके शासनकाल में देश की पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं सम्मान करता हूं, इंदिरा जी का, उनकी मूर्ति लगानी थी तो आपने फॉरेस्ट डाइवर्ट कर दिया था। आपको हेलीकॉप्टर उतारना था, आपने फॉरेस्ट, वही निकोबार का डाइवर्ट कर दिया था। आज जब देश की सुरक्षा के लिए 1.78% जमीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कॉलम लिख रहे हैं। और आप मुझे ये बताइए, वहाँ के जो हमारे जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, शैम्पेन है, ओंज है, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी का पूरे तरीके से पालन किया गया है। फिर मैं मानता हूँ फ्रजाइल और इकोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम तो अपने देश की इकोलॉजी को बचाने में पूरे तरीके से लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ZSI है, BSI है, WII है, उसका मैनेजमेंट प्लान है, हमने सबका पूरी तरीके से पालन करके किया है। मेरे को ऐसा लगता है इकोलॉजी और इकोनॉमी तो चलनी चाहिए, लेकिन देश के हर इंस्टीट्यूशन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, देश के हर विकास की मंशा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, और अपने विषय के लिए तो मूर्ति लगाने के लिए जमीन लेना, लेकिन जब देश की बात आए तो कॉलम लिख देना, इसको पॉलिटिकल तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, मुझे तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है, नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं। पॉलिटिक्स देश को बनाने के लिए होनी चाहिए, देश में भ्रम फैलाने के लिए नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से
आज इस देश में कुछ लोग भ्रम फैलाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन देश सब जानता है। भूपेंद्र यादव जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि राज्यों के साथ, स्टेट्स के साथ आपकी बैठकें होती हैं कि नहीं। अब वही सवाल मैं इस सवाल से जोड़ रही हूँ कि जब आप कॉलम खेलते हैं, सोनिया गांधी जी कॉलम लिखती हैं, आप कॉलम में जवाब देते हैं, आप लोग रोज पार्लियामेंट में मिलते हैं, कभी बातचीत होती है, चर्चा होती है, कुछ सकारात्मक इस देश के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं, इन पर कभी चर्चा होती है? वो चर्चा करने का अवसर कब देते हैं? वो नारे इतने लगाते हैं। और पूछो, पार्लियामेंट चर्चा करने के लिए होती है। इस देश की पार्लियामेंट को चलने कौन नहीं दे रहा है? इस देश की पार्लियामेंट को तो विपक्षी चलने नहीं दे रहा है। आज इस देश ने जीएसटी के 2O दूसरे भाग में जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस देश में 8 साल पहले जीएसटी लागू हुआ था, उसका बहिष्कार किसने किया था? कांग्रेस ने। जिस दिन इस देश की नई पार्लियामेंट बनी, उस दिन उसका बहिष्कार किसने किया था? कांग्रेस ने। जिस दिन देश के कानून के लिए, आज हम यूथ के लिए बिल लेकर के आए, चलिए तो निकोबार का विषय, लेकिन यूथ के विषय में तो किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। यूथ पॉलिसी आनी चाहिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी आनी चाहिए। इस पार्लियामेंट सेशन में जिस दिन वो बिल आया था, शोर किसने मचाया था? कांग्रेस ने। अब बताइए, मैं तो आपको 15 उदाहरण बताना चाहता हूं, पर समय 18 मिनट रह गया है। जिन्होंने शोर मचाया, देश की जनता उनको जवाब दे रही है। हम कॉलम नहीं खेलते, हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम देश के विकास की बात करते हैं और वही अपनी बात पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं। आप भी उनके ऊपर प्रेशर बनाइए कि पार्लियामेंट को चलाना ये सबका धर्म होता है। दुर्भाग्य से विपक्ष वो काम नहीं कर रहा है। वो जब आप विपक्ष में थे तो आप ही ने ये सेंटेंस उनको दिया था कि पार्लियामेंट चलाना सत्ता पक्ष का काम होता है। वो आप ही का डायलॉग यूज करते हैं, आप उनकी सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। मैं नाविका जी आपको कहना चाहता हूं, और वो हमेशा अरुण जी को कोट करते हैं। हमने तो उनसे जब राज्यसभा सदस्य बने तो एज ए एमपी के नाते उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं ये मानता हूं कि पार्लियामेंट की हर बढ़िया डिबेट को अरुण जी का आप जवाब देखिए, पार्टिसिपेट करते थे। कभी बीजेपी पूरा सेशन जो है, जिस तरह की व्यवहार, जिस तरह की हरकत ये करते हैं, वैसा नहीं किया। कभी देश के सामने कोई गौरव का विषय आया, कोई जीएसटी का जैसे कानून आया या नई पार्लियामेंट, संसदीय परंपराओं में कभी ऐसी गिरावट का काम नहीं किया। विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य है, सरकार को चेताना विपक्ष का कर्तव्य है, सरकार की आलोचना करना विपक्ष का कर्तव्य है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकते। हम डेमोक्रेसी में 2 डिफरेंस व्यू होंगे और हमारी कोई आलोचना नहीं करेगा, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन आप देश के हर गौरवशाली चीज का केवल बहिष्कार करें, ये तो ठीक नहीं है। कुछ चीजें तो कंसेंसस पे खड़ी करनी पड़ेगी। क्या कभी जम्मू कश्मीर पे प्रस्ताव पास हुआ था तो बीजेपी कभी साथ नहीं खड़ी हुई थी? क्या इस देश में बाकी के जो परिवर्तन आए, इतने कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन में, क्या बीजेपी ने खड़े होकर के साथ नहीं दिया? लेकिन जहां पर कोई पॉलिसी का इश्यू है, वहां पे समझ में आता है। क्या देश के प्रधानमंत्री खड़े और विपक्ष उठा करके नारे लगाए? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के समय में कब ऐसा हुआ, कब ऐसा करा गया? आज जो व्यवहार हम देख रहे हैं, ये व्यवहार तो मैंने आज मैं 14 साल मेरे को पार्लियामेंट के अंदर हो गए हैं, हम विपक्ष में थे तब भी मैं एमपी था, इस तरह का अमर्यादित व्यवहार कभी नहीं देखा। पर आज विपक्ष के नेता जो है 40 मिनट भाषण देने के बाद विदेश में जाकर के कहते हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। 40 मिनट भाषण देने के बाद जब प्रधानमंत्री जी बोलने लगते हैं तो ये लोग नारे लगाने लगते हैं। आपके 40 मिनट में तो सब लोग चुप रहे थे, आप पूरा 40 मिनट बोले थे। तो ये संसद को बदनाम करना, संसद के विषयों को बदनाम करना। आप बिहार में आरोप लगाते हैं और बाद में दुनिया ढूंढते तो पता नहीं कौन से देश में पाए जाते हैं। तो आज भी आरोप लगाया है। ऐसे तो अब अगले दिन कहीं और पाएंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता। विपक्ष को गंभीरता के साथ करना चाहिए और पॉलिसी पे डिबेट करिए। अगर पॉलिसी पे उन्होंने लिखा है तो हमने भी पूरी स्पष्टता के साथ जवाब दिया। पॉलिसी पे चर्चा करने से ही देश का लोकतंत्र बढ़िया चल सकता है और हम इसमें पूरी तरीके से यकीन करते हैं। My question to you is also about the issues of pollution across cities in India, the issue of infrastructure across cities in India, the question of how our cities just get flooded by a couple of rains. Is the infrastructure not correct? Are our
Is this an environmental issue? Is this an urban development issue? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एक बड़ा policy framework है जिसमें is policy making falling between two stools? ये सच है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दृष्टि से और आपस में कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए एक ऐसी जगह है जिसमें विशेष रूप से मैं भी ये मानता हूँ कि जब भी कोई नया सिटी बनता है तो उसकी हाइड्रोलॉजी उसका देखना चाहिए कि जो पानी के बहने का तरीका है, लोकल जो बाढ़ आने के बाद जो वाटर बॉडीज़ के एरियाज़ हैं वो एरियाज़ पूरी तरीके से सुरक्षित होने चाहिए। और कोई भी सिटी डेवलप होता है तो 30, 40, 50 साल में जाकर के होता है। हम जो अभी रामसर साइट्स के लिए या जो लेक्स को बचाने की बात कर रहे हैं कि जो हमारे शहर हैं उनके बीच में जो लेक्स हैं उनका जो कैचमेंट एरिया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो अर्बन प्लानिंग है उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अभी हमने मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो लगातार हमारे SOP इश्यूज़ हुए हैं, हमारा मानना है कि सेव वाटर का अर्थ केवल अपना पानी का सिस्टम नहीं है, हमें नेचर के साथ जो वाटर सिस्टम है उसको भी सेव करने का काम करना चाहिए। इसमें और पॉलिसी की तीव्रता की आवश्यकता भी है। Bhupendra Yadav ji, there are many people here who also want to ask you questions. So before I dominate the entire session, I want to call out the name of Mr. Rishi Chawla. Mr. Rishi Chawla, you wanted to ask a question of the minister. Please go ahead. Namaskar, sir. Thank you for this insightful, the insights that you have given us. I'll ask you the question from an industry perspective. और आपने जो अभी बताया net zero के बारे में या there is no alternative to nature, the industry completely respects that. And we are also committed to achieve all those goals, the ESG goals that we have committed to. My question is from a regulatory process point of view. सुबह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विकसित भारत 2047 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के क्या इम्पोर्टेंस है, और काफ़ी सारे पैनलिस्ट जो हैं वो इस पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे फास्टर अप्रूवल्स हो रहे हैं और होने चाहिए. तो माय क्वेश्चन इज हाउ इज योर मिनिस्ट्री being aligned to these regulatory reforms agenda, the broader regulatory reforms agenda, and can we see these environmental clearances both in the center and the states coming into or aligning with the national single window scheme for faster approvals of the projects? आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। और इस देश में जब UPA की सरकार थी तो जो औसत एवरेज था एनवायरनमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने का वो 600 डेज था, और आज हमारे देश में ये क्लियरेंस मिलती है 75 डेज में। अब ये कैसे संभव हुआ कि इंडस्ट्री लगाने के लिए 4 क्लियरेंस की कई बार दिक्कत आती है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, CRZ क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस। इसमें सारी फाइलें एक साथ नहीं चलती, सब हिंदुस्तान में फाइल एक दूसरे से बात नहीं करती। हम जो परिवेश पोर्टल लेकर के आए, जो परिवेश 2.0 लेकर के आए हैं, उसमें हमने आज कोई भी DFO बैठ करके किसी भी फाइल की इसकी एनवायरनमेंट में क्या स्थिति चल रही है, फॉरेस्ट में स्थिति क्या चल रही है, वाइल्ड लाइफ में क्या स्थिति चल रही है, एक साथ देख सकता है। तो ये जो एक साथ काम करने का जो विषय है इसको हमने आगे बढ़ाने की बात करी है। कुछ राज्यों में चीज़ें रुकती हैं क्योंकि राज्यों को ऊपर भेजना पड़ता है, तो उसमें अभी ऐसा लगता है कि हम परिवेश 2.0 से या परिवेश 3.0 की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो उसका अगर हम एक प्लेटफॉर्म बना दें, गतिशक्ति के साथ उसको जोड़ दें, तो डेटा को इकट्ठा करने में जो समय लगता है उसको भी हम बचाया जा सकता है, और भी काफ़ी सारे प्रोविजन को हम कर सकते हैं। लेकिन इन विषयों को हम लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे 2 विषय हैं, एक तो रेगुलेटरी प्रोसेस इतना भी ढीला नहीं होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट के नॉर्म्स के साथ खिलवाड़ करें, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो रेस्ट्रिक्शन बने। अभी जैसे
29 अगस्त को हमने ग्रीन क्रेडिट के लिए हम लोग एक नोटिफिकेशन लाए हैं। एक और दूसरा लाए हैं कि एसपीसीबी और सीपीसीबी इनकी क्षमता ऐसी होती थी कि बार बार इंस्पेक्टर जाते थे, जांच करते थे, और सबकी तो जांच होती नहीं थी। तो अब नया नोटिफिकेशन जो हम लाए हैं उसमें हमने कहा है कि एनवायरनमेंट के ऑडिटर होंगे। तो कोई भी कंपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से अपना ऑडिट करा के अपनी रिपोर्ट कर दे। एक तरीके से ये सेल्फ असेसमेंट भी होगा और सबके लिए ईज आउट भी होगा। जिनकी रेगुलरिटी पाई जाएगी उनकी चेकिंग हो जाएगी। पर एक जो भय का वातावरण हम लोग खड़ा कर रखा है, उस भय के वातावरण को हम लोग किसी तरीके से समाप्त करके ईज आउट कर दें। और इसलिए जो जनविश्वास बिल सरकार लेकर के आई है उसमें इंडस्ट्री चलाने वाला आखिर देश में रोजगार दे रहा है, वो कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं कर रहा है। तो हमने पूरे जनविश्वास बिल से सभी पॉलिसी स्तर पर जो विषय किसी के व्यक्ति के जीवन से संबंधित है वहां तो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो बाकी के विषय हैं, जनरल रेगुलेटरी विषय हैं, वहां पर आप हर एक को सजा देकर जेल कर दोगे, ऐसे बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। सरकार पूरी तरीके से स्पष्ट है और ये हमारी नीति ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति है। Let me call out to Mr. Rajiv Batra. Your question next. Sir, I wish to bring in an international perspective to this on climate change. India has become now a major party in the Conference of Parties. So Can you bring your mic closer? Sure, I'll do that. On the COP, is that too loud now? Beyond the pledges, would you share how policy and regulatory changes are being developed domestically to meet our COP30 goals in coordination with industries and ministries? How do you see the domestic policies evolving to align with international climate commitments? आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअल में दुनिया में 3 कॉप हैं प्रमुख रूप से। एक है UNFCCC। UNFCCC में मैंने आपको पहले कहा है कि हमारे NDCs के जो 8 कमिटमेंट थे, 3 में से 2 हमने समय से 9 साल पहले पूरे किए, और जो तीसरा कमिटमेंट हमारा था कि हम जो ग्रीन श्रिंक को बढ़ाएंगे, हरित आवरण को जो बढ़ाएंगे, उसको भी हम 2030 तक पास करेंगे, और हमने एनहेंस NDCs पेश किए। दूसरा जो बायोडायवर्सिटी का है, जो हमारा मॉन्ट्रियल कीमिंग कॉप जो हुआ था बायोडायवर्सिटी को लेकर के, जिसमें हमने ये तय किया था कि हम भी अपने 1/3 एरिया को बायोडायवर्सिटी के लिए प्रिजर्व, कंजर्व और रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि बायोडायवर्सिटी को बचाने से ही स्पीशीज का बैलेंस रह सकता है। तीसरा जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड UNFCCD जो है कॉप, और उसमें मैंने जब दुनिया के सामने विषय रखा कि आखिर अपना जो सॉइल है, अगर ये सॉइल बंजर हो जाएगी तो कोई अनाज नहीं होने वाला है, दुनिया में नया संकट हो जाएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने 29 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है, ताकि सॉइल की टेस्टिंग करा के अपने सॉइल की ताकत को जान सके। ये जो एडेप्टेशन के विषय हैं, इसको लेकर के हम पूरे तरीके से सजग हैं। मिटिगेशन मेजर्स में जो सरकार ने अपने NDCs टारगेट दिया, उसको सरकार ने समय से पहले अचीव किया है। और जो पर्सनल बिहेवियर है, उसके लिए मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ का नाम जो मूवमेंट हम चला रहे हैं, ये दुनिया भर में इसीलिए अप्रिशिएट किया जा रहा है कि भारत दुनिया के क्लाइमेट के में सॉल्यूशन का काम कर रहा है, प्रॉब्लम का नहीं। Well said, Bhupendra Yadav ji. I think we can clap louder than that. Are we too sleepy? Thank you. That showed that the audience is still awake. But I have 2 slips from the audience, people who wanted to ask questions. And since my self-declared policy is that I'm very, very partial to women, I'll call out the name of the woman first. Manaswini Hariharan from the Urban Land Institute. Yes, please. Your question, brief to the minister. Absolutely. And, okay, please ask your question. Thank you so much, sir, for being here. My name is Manaswini, and I'm the Executive Director for the Urban Land Institute. I work with real estate corporations to see how to make better cities to live in. And on that note, my question to you is, what can the private sector
and businesses in general do to support the government's efforts to reduce air pollution, something that Delhi is definitely going to see in the next couple of months? Okay. There's another question. इसका if I- सिंपल जवाब है, मुनाफे पे कम ध्यान दें, पब्लिक यूटिलिटी पे ज़्यादा। I think that deserves a round of applause. Prabhat Jain from Abbott also gave in his name. Yeah. Thank you, sir. My question is on business continuity. How seriously should Indian businesses prepare and plan for climate change, and what steps can we take for that? देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक कैटेस्ट्रोफिक होते हैं, जो हर चीज़ में खतरा देखते हैं, और दूसरे टेक्नो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जिनको लगता है टेक्नोलॉजी सबको सॉल्व कर देगी। इसके बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और कोई दुनिया एकदम से कोई ख़त्म भी नहीं होने वाली, लेकिन सब चीज़ों का समाधान टेक्नोलॉजी का भी नहीं है। सब चीज़ों का समाधान है कि हम जो नेचर के रिसोर्सेज हमें मिले हैं, उसका कैसे वाइजली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन स्पीशीज़ को ये समझना होगा कि ये धरती केवल उनके लिए नहीं है। और एक जैपनीज वर्ड आता है एशोफानी, या लिविंग और लिविंग बीइंग दोनों है। दोनों का को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। को एग्जिस्टेंस विथ नेचर ही हमको और इस दुनिया को बचा सकता है। दुनिया केवल बिजनेस के लिए नहीं है, दुनिया जीने के लिए है, बिजनेस फैसिलिटेट करने के लिए है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करने के लिए। धरती पे कोई विजय नहीं पा सकता है, धरती पे सह अस्तित्व से जीना होगा। ये पॉलिसी से लेके बिजनेस में अगर हम सब समझेंगे तो ही प्रकृति को बचा सकेंगे। Well, you know, the spirituality in the policy making actually explains us the basics, and very well said, Minister Bhupendra Yadav. But before I end, आपने कहा दुनिया अभी खत्म नहीं होने वाली है। सुबह मैं राहुल गांधी जी को सुन रही थी तो लगा प्रलय आ ही गई है। तो चोरी कर लिया आपने सब कुछ। जो ऐसा मानते हैं उनके लिए आई जाएगी। पर वाकई ये सवाल सबके मन में उठता है कि वो कह रहे हैं कि आप वोट चोरी करते हैं, और उन्होंने आज तो ये तक कहा कि उनका कोई मोल है इलेक्शन कमीशन में। आपकी इंटेलिजेंस क्या कहती है? मैं तो इंटेलिजेंस के आधार पे काम नहीं करते, क्योंकि ये सरकार तो एक ईमानदारी और पारदर्शिता में विश्वास रखने वाली सरकार है, इसलिए ये इंटेलिजेंस में विश्वास नहीं करती, फैक्ट में विश्वास करती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए, जहाँ पे राहुल गांधी जी ने इस विषय को उठाना शुरू किया, वहाँ 40 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वोट बढ़े और कांग्रेस और उसके साथी जीत गए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितेंद्र आव्हाड की सीट पे लगभग 50 या 60 हज़ार वोट बढ़े, वो 90 हज़ार से जीत गए। नागपुर की 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ 25-25 हज़ार वोट बढ़े और कांग्रेस ही इन दोनों सीटों को जीत गई। मालेगांव की सीट ऐसी है जहाँ पर वोट बढ़े और उन्हीं के लोग जीते। बॉम्बे में एक सीट ऐसी है जहाँ 40 हज़ार वोट बढ़े और वहाँ उनके इंडी गठबंधन की पार्टी, समाजवादी पार्टी जीत गई। मैं कोई ऐसी बात यहाँ पर बैठ के नहीं कहूँगा जिसको लोग फैक्ट पे चेक ना करें। आप फैक्ट पे चेक करिए, और किसी को पर्टिकुलर सीट के बारे में जानकारी है तो मेरे से लीजिए। जब वोट बढ़े और आप जीत गए तो वही बताएं कि उसमें वोट चोरी किसने करी। इस देश में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने वाला है, पर जिस तरीके से मैंने कहा है, संसद का बहिष्कार करना और देश की संवैधानिक संस्थाएं अगर आपके अनुकूल ना हो तो उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। और इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं वो देश के लोकतंत्र के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। I see that hand very desperately waving from there. In the last row, yes, what's your question? Kindly identify yourself and ask a very brief question. Yes, ma'am. I'm Siddharth Mohan. I'm a LAMP fellow working with PRS Legislative. So my question is, since you said that we must focus on policy, my question is again on the Great Nicobar project. The reason I bring it up again is that even that small piece of land which is being used lies along the coast, cuts access of tribal communities to their livelihoods,
it ends up blocking the migratory patterns of a lot of creatures over there, including the Ridley turtles. Also on the fact that Madam Sonia Gandhi had raised on how compensatory afforestation in Haryana is being proposed in the document. So the unscientific nature of that. So how would you tackle all of these questions? These can't be dismissed, is the point that I'd like to raise. पहली बात तो जो एरिया यूज़ किया गया है वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. दूसरा मैंने आपको कहा है वहाँ जो पॉलिसी है जो दोनों कम्युनिटीज़ की शैम्पेन और ऑन की उसका पूरी तरीके से पालन किया गया है. तीसरा वो तो ऑलरेडी ही 90% जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो आपको कहीं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन तो देना होगा. और आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली में 6 करोड़ लोगों के बीच में एक ग्रीन टापू नहीं चाहिए हमें ऑक्सीजन का? और अगर हमने इसको किया है तो हमने दिल्ली के लंग्स को भी साफ करने का काम किया है. क्या 1.78% पे भी देश में विकास करने का अधिकार नहीं है? क्या 2% से कम जगह पे भी आप विकास नहीं करोगे? और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे पूछो, उन्होंने मूर्ति लगाने के लिए कैसे तुरंत स्वीकृति दे दी, उसका सीए कहाँ गया? ये केवल क्वेश्चन एक विषय को भरमाने के लिए किया गया है. कभी भी हम कोई भी पॉलिसी में 1% भी फॉरेस्ट पॉलिसी का डिविएशन नहीं करते. हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि धरती को बचाना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है. धरती को बचाना पूरी मानवता को बचाना है. Well said. And as I said, my stated policy is to be partial to women. So there's one woman raising her hand. The last question from her. Thank you, Navika, for your biasness. Good afternoon, Minister. My question to you would be... Identify yourself, please. I'm so sorry. My name is Unnati. I'm a scholar at the Indian School of Public Policy. Since you mentioned about Ramsar sites, I would first of all congratulate you since the ministry was able to get Ramsar accredited cities this year. So that's definitely a big feat. However, we noticed that in Rajasthan, where we have Ramsar accredited cities, we also have the Keoladio National Park that has been on the Montreux record since 1990. So, and it is a certified Ramsar site as well in itself. So is it a problem that the ministry faces from the public's end, or is it like a issue where there is like a displaced priority set up? Because it's the same ministry where, as you mentioned, 75 days mein permits mil jate hain. All right, with your permission. कौन सी साइट का कह रहे हैं? Keoladio National Park, a Ramsar site in Rajasthan. Rajasthan. केवलादेव ना, भरतपुर के पास. बैठिए. ऐसा है कि रामसर साइट को बनाने के लिए जो हम प्रस्ताव रामसर कॉप के अंतर्गत भेजते हैं, उस कॉप के अंतर्गत उसमें वो कई मान्यताओं के आधार पे देते हैं. और NBWL का भी लेटेस्ट SBWL का जो ऑर्डर हुआ था, उसमें केवलादेव के पास जो भी कैचमेंट एरिया में बिल्डिंग बनाने की परमिशन मांगी थी, हमने सारी रद्द कर दी है, क्योंकि इन साइट्स को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और हमने इन साइट्स के लिए एक और विषय करा है. हमने इनके रामसर मित्र बनाने का काम किया है. मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट बना था, उससे पहले मैं लॉयर था और घूमता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस देश के पास इतनी सुंदर प्राकृतिक झीलों का उपहार है. मतलब मैं तो यही मानता था कि जम्मू कश्मीर में केवल डल है, लेकिन मुझे जब बाद में ये जानकारी हुई कि बांदीपुर ज़िले में वूलर हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी उसकी मीठे पानी की झील है. मैं जब मणिपुर गया तो देश में 250 किलोमीटर लंबी इतनी बड़ी सुंदर झील हमारे पास है. या दिल्ली में भी भिंडुवास और हमारा जो सुल्तानपुर, ये इतनी बड़ी झील हमारे पास है. या राजस्थान में सबसे बड़ी नमक की झील हमारे पास है. या चिल्का जैसी झील और आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक हमारे पास है. या गुजरात में भी काछड़िया झील हमारे पास है. मैं सबको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन रामसर साइट्स के बारे में जागरूकता करिए. ये फ्लड को, जैसे हमारे गुवाहाटी में दापोली बिल है, तो ये जो फ्लड एरिया आता है उस फ्लड को और वेस्ट पानी को भी रोकने का काम करती है. सबसे बड़ी बात है, शहर के अंदर बड़ी झील ये पीस का भी काम करती है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी काम करती है. और इसलिए
इस बार तो हमने जैसा बताया है कि इंदौर को और उदयपुर को हमने रामसर सिटी के रूप में जो है इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। और हम लोग कई बार फॉरेस्ट को जब देखते हैं, मैंने कहा ना लिविंग और लिविंग बीइंग, तो हम कई बार बहुत मजाक में भी कहते हैं कि फॉरेस्ट बचाना, अगर हम लिविंग हैं तो हार्ट को बचाना है, झील को बचाना, ये किडनी को बचाना है। इसलिए अगर अपन लिविंग एंटिटी में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट और झील दोनों को बचाने का काम सबको मिलके करना चाहिए। Well said, Mr. Bhupendra Yadav. With that, it's a wrap. I'm really sorry I can't take any more questions, paucity of time. But I would like to call upon Rohan Mishra, Senior Director, Government Relations and Policy Advocacy and Strategic Issues Management of the Coca-Cola Company, to give in a vote of thanks. Good afternoon. Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji, Navika, Rishi Rajiv, and Rishi. On behalf of PAFI, I wanted to extend my sincere gratitude and thank you all for delivering your views really on the sustenance of sustainability. It's very interesting while going through some of the details. I came upon a study last year by the London School of Exchange, by the London Stock Exchange Group, which actually said that the market for environmental solutions, or broadly that we call the green economy, has grown substantially faster than the broader market, which means that both in terms of revenue and in terms of valuation, it's as a standalone sector has probably outperformed most other industries except the technology sector. I think that should give a vote of confidence to investments in the green economy. Climate adaptation, as we all know, is not cheap. It alone needs about 2.5% of your GDP, which translated is about $100 billion a year. I wanted to take from a very recent speech that the Honorable Minister had made a couple of weeks back, where he underscored 3 important pathways essentially to be able to do that, because it will need the right kind of financing. One, climate finance, absolutely indistinguishable from development finance. I think that's a fundamental. Second, clean power, efficient cities, climate smart agriculture, and resilient infrastructure are not just additions, but the very foundations of national security and industrial competitiveness. And lastly, those countries which mobilize green investments today will probably dominate the future of value chains in terms of industry and trade. It would be remiss of me not to acknowledge the students in this room who are studying public policy. I wanted to mention what technology as a space did for the public policy as a profession in the last 10-15 years. This panel and the interest in the green economy hopefully will move a lot of these people into the space of environment policy as well. I'm fairly confident we will see a young generation of stalwarts come together and contribute towards the space of environment policy in the future. Thank you once again to all of you for attending this session. Can I request my friend Rishi to present the policy pivot book to the moderator and the Honorable Minister, please? Thank you.